Good morning everyone. Welcome to your physics class. We were studying some previous year board questions in from this current electricity chapter. We have already discussed I think 2 or 3 questions. Today we are going to solve some other questions from previous year board questions. That is, first question is from CBSE 2018 paper. It is a very simple question based on Kirchhoff's law, or you can say you can apply concept of internal resistance of any cell, any battery also. So first, here we have a figure given. Here we have 2 cells. This one is a battery of EMF 200 volts because cell एक छोटे वोल्टेज की सिंगल सेल को कहते हैं. यहाँ 200 वोल्ट है तो ये बैटरी होगा. Here 10 volt cell is given and 200 volt EMF is also, battery is also given. Here it has internal resistance 38 ohm, but here for this cell just because internal resistance is not given, so it must be of negligible internal resistance. So let's study the question. A 10 volt cell of negligible internal resistance is connected in parallel across a battery of EMF 200 volts. Alright, and internal resistance 38 ohm. Find the current in the circuit. So simply we have to apply Kirchhoff's law, Kirchhoff's loop rule. Alright, so solution. Here add all the EMFs on one side, all the voltages on one side or potential difference on one side, and the I multiplied by R, or combination of all I's and R on other side. So sigma V is equals to sigma I R. This is what we do in our Kirchhoff's loop rule concept. So for this is 200 volt minus 10 volts. Alright, this is what V, summation of V, and here I multiplied by R, just because only one R is given, so it will be I. If current I is flowing in it, मान लीजिए अगर इसमें से current I flow करती है तब, multiplied by 38 ohms. So this is in volts, this is in ohm, and multiplied by I, so I will be equals to 190 divided by 38. So it will be 19 tens are 19 twos are 10 by 2 5. Alright, just because these are in volts and ohm, so this I will be amperes. Alright, so this is what our first question, which was very easy. Let's come to our next question. Alright, let's see what is. So this is our next question. Let's see what it is. In a potentiometer arrangement for determining the EMF of a cell, the balance point of the cell in open circuit. In open circuit, balance point is at 350 centimeter. When a resistance of 9 ohm is used, in the external circuit, resistance is used in external circuit, so it is our external resistance. The balance point shifts to 300 centimeter. So second balance point is 300 centimeter. Find the internal resistance of the cell. So here we have a question from practical of potentiometer arrangement. That is, we have 2 balancing lengths given. Internal resistance we have to identify, or we can say calculate. So let's see what happened. As we know from our arrangement in practical, that when open circuit is considered, it means there is no voltage from external circuit. वो जो सर्किट जो हमारी पोटेंशियोमीटर अरेंजमेंट का जो पोटेंशियल है, यानी EMF, डायरेक्ट EMF यूज होगा. ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि पहली बैलेंसिंग लेंथ जो मिलती है, मान लीजिए अगर उस पोटेंशियोमीटर वायर का पोटेंशियल ग्रेडियंट K है, स्मॉल k, जैसा हम हमेशा लेते हैं, तो उस कंडीशन में
अगर हमने L1 माना हमारी पहली बैलेंसिंग लेंथ को ओपन सर्किट के केस में, देन वी कैन राइट सॉल्यूशन, वी कैन राइट इट लाइक फॉर ओपन सर्किट, देखिए ओपन सर्किट के केस में ईएमएफ यूज होगा क्योंकि कोई करंट नहीं बह रही है, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं यूज होगा. सो वी कैन से E, the EMF of the cell is equals to K times if the potential gradient of the potentiometer is K, तो K times of L1. ये पहला केस हो गया. अब मान लीजिए हमने सर्किट को क्लोज किया. देखिए ये L1 की लेंथ हमको 350 सेंटीमीटर दिया है. पोटेंशियल ग्रेडियंट हमको जरूरत नहीं है क्योंकि वो रेशियो में कैंसिल हो जाएगा. नेक्स्ट, व्हेन सर्किट इज क्लोज्ड and external resistance 9 ohm is applied here for closed circuit. देखिए एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी अप्लाई हुआ, पोटेंशियल अब ईएमएफ ना होके वो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा. दूसरी चीज, तीसरी चीज एक बाहर का रेजिस्टेंस भी अप्लाई होगा. ठीक है, तो ये सारी चीजें अब हम इसमें मिला देते हैं. तो देखिए दूसरे केस में मान लीजिए पोटेंशियल टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस K टाइम्स L2 ये होगा, कोई और बैलेंसिंग लेंथ हो गई. अब हमको इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे अप्लाई कर देना, लेकिन ये याद रखना है कि यहाँ पे R यानी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना है, 9 ओम. ठीक है, हमको इंटरनल रेजिस्टेंस यानी स्मॉल r की वैल्यू निकालना है. करंट हमको चाहिए, देखते हैं करंट कहाँ चाहिए, कैसे चाहिए. अगर करंट के बिना काम चल सकता है क्या, रेशियो, क्योंकि जनरली हम इसमें रेशियो ही लेके सब सॉल्व करते हैं. सो हियर वी कैन से E by V is equals to, यहाँ K कैंसिल आउट, L1 by L2 ये कर सकते हैं. अब यहाँ पे ध्यान दीजिए E जो है वो यहाँ पे यही है, लेकिन V के साथ हम कुछ चेंज कर सकते हैं. पहली चीज हमें एक फॉर्मूला पता है, एस E minus V is equals to I small r, यही होता है ना. सो V equals to E minus IR होता है, तो वही हम यहाँ अप्लाई करते हैं. E minus V is equals to IR. फर्स्ट थिंग इज दिस, देन टेक रेशियो. यहाँ पे देखिए ये हमें रिलेशन पता है, ये हमको दिख रहा है यहाँ से. ठीक है, ये मैं अलग यूज कर रहा हूं जब सेल से करंट I निकले और सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r हो. ठीक है, ये तब का केस है. अगर मैं आपको रिवाइंड कराने के लिए फिगर बनाऊं तो ये कुछ ऐसा नजर आएगा कि मान लीजिए एक जनरल मैं समझा रहा हूं कि क्या है, ये है, ये हो गया पोटेंशियल वायर, ये बाहर से एक सेल लगा, इसका R है रेजिस्टेंस, ये बैलेंसिंग लेंथ है. यहां से यहां तक ये जो है L लेंथ है, ये पूरी AB एक पोटेंशियल वायर है जिसमें ये एक बाहर से जुड़ा हुआ है. इसका ये जो EMF E और V निकाल रहे हैं ये इस वाले नीचे वाली सेल के लिए है. ऊपर हम जो जोड़ेंगे बैटरी वो इसको पोटेंशियल ग्रेडियंट देगा. इसका पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना दिया है हमें वायर का, K. ठीक है, ये हमारा स्मॉल r है जो हमको निकालना है. ठीक है, और यहां पे एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और जुड़ा हुआ है, यहां हम कह सकते हैं कि यहां जुड़ा हुआ एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस E by V K. ठीक, तो यहां पे एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो अलग से जोड़ रहा है उसके लिए, तो ये एक पोटेंशियोमीटर का अरेंजमेंट है. तब उस केस में यहां क्या हो जाएगा, E by V, अगर मैं V कॉमन ले लूं, -1 इज इक्वल टू V इधर डिवाइड कर दो IR by कैपिटल V. ठीक है, लेकिन ये कैपिटल V किसके बराबर था, ये कैपिटल V तो I और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो होगा कितनी, वही करंट R रेजिस्टेंस के साथ जब निकलती है, यानी करंट का ड्रॉप कैपिटल R है. तो यहां पे क्या हो जाएगा, IR by I कैपिटल R. हम ये कर सकते हैं पोटेंशियल की जगह, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की जगह IR. देन वी कैन राइट इट लाइक R by R. सो E by V minus 1 is equals to R by R. तो E by V की जगह L1 by L2 रख दें, L1 by L2 -1 is equals to R by R.
हमको स्मॉल आर चाहिए, सो स्मॉल आर इज इक्वल्स टू इन ब्रैकेट L1 by L2 minus 1 एंड मल्टीप्लाइड बाई आर, ये आर इधर कर दिया। अब इसमें केवल वैल्यू आपको रखना है और सॉल्व हो जाएगा। आर जब L1 की जगह 350, L2 की जगह 300, ठीक है, आर की जगह 9 ओम अगर आप रखेंगे तो आपको आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा। इसका जो आंसर होगा वो आएगा 1.5 ओम्स। आप सॉल्व कर लीजिएगा 1.5 ओम। ये आपका इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ दी सेल है, जो अलग से मैंने छोटा से लगाया था उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है। चलिए, तो ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन आपके पोटेंशियोमीटर से है। इस तरह के क्वेश्चन यानी प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं इस चैप्टर से। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखेंगे वो हम इसी टॉपिक से ही आगे भी देखेंगे। Here we have another question. This is asked in CBSE 2016. It is also from potentiometer. All right. Here a potentiometer wire. I am not writing the question just because I need some space for solving this question. Here we have an arrangement. A potentiometer wire of length 100 centimeter. All right. Having a resistance of 10 ohm. This resistance, this wire AB has resistance 10 ohms. वायर AB के पास कितना रेजिस्टेंस है? यहां A से B तक का 10 ओम है। ऑलराइट, सो इट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर. This will be used, this resistance wire will be used to calculate the potential gradient. All right, we will see. A potentiometer wire of length 100 centimeter having a resistance of 10 ohm is connected in series with a resistance R. This AB is connected in series with a resistance R. All right. And a cell of EMF 2 volt and a cell of EMF 2 volts. This cell is of negligible internal resistance. ये cell जो है कि negligible internal resistance का है. A source EMF of 10 millivolt. This is a source EMF of 10 millivolt. 10 millivolt. That is why I have written it 10 into 10 power minus 3 volt. All right. Is balanced against a length of 40 centimeter of potentiometer. हमने एक 10 मिलीवोल्ट की सेल लिया, ये पोटेंशियोमीटर अरेंजमेंट था, हमने 10 मिलीवोल्ट की सेल लिया, उसको यहाँ पे बैलेंस किया इस सेल के साथ। हम ऐसा ही प्रैक्टिकल में करते हैं, एक सेल लेते हैं, उसका बैलेंसिंग पॉइंट खोजते हैं। तो हमने ये पाया कि ये जो सेल थी ये बैलेंस कितने सेंटीमीटर पे हुई? लेफ्ट साइड से 40 सेंटीमीटर की लेंथ पे जाके, यानी 100 में से 40 सेंटीमीटर की लेंथ पे जाके इस सेल को इस सेल ने बैलेंस कर लिया। ठीक है, अब बैलेंसिंग कंडीशन हमें 40 सेंटीमीटर पे मिल चुकी है। ठीक है, तो हमें निकालना क्या है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस? सो दिस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस वी हैव टू कैलकुलेट। हमें ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। ठीक है, देखिए ये कोई खास टफ नहीं है, आप जो भी रेजिस्टेंस लेंगे उसको ये R के साथ जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो यानी देखिए सबसे पहले हम मान लेते हैं कि जिस टाइम में, मतलब जब ये हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, मान लीजिए जब EMF E अप्लाई करते हैं, यानी ये वाला जो EMF है जब हम अप्लाई करते हैं, तब इस टाइम में इसमें जो करंट है, मान लीजिए अगर ये सर्किट हम भूल जाएं, ये सर्किट हम ध्यान से ना देखें, ये है ही नहीं, तब ऐसे केस में EMF ये है, ठीक है, E वोल्ट की बैटरी है और नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस है, यानी ये जो पोटेंशियल डिफरेंस देगा ये भी यही होगा, 2 वोल्ट होगा। ठीक है, पहली कंडीशन। तब उस समय में इसके अंदर कितनी करंट बह रही होगी वो निकाल लिया जाए। सो करंट इन दी सर्किट I is equals to, ऊपर वाले सर्किट की बात करें, I is equals to E by रेजिस्टेंस, लेकिन रेजिस्टेंस R ही नहीं है, AB का भी तो रेजिस्टेंस है। AB कितना है? 10 ओम, यानी R plus 10।
ये हो गई हमारी वो करंट जो ऊपर वाले सर्किट में बह रही थी। अब बैलेंसिंग कंडीशन अचीव हुई है ना, तो बैलेंसिंग कंडीशन यानी ये ईएमएफ को हमने ऐसी जगह ले जाके पुट किया कि इस तार ने केवल उतना ही रेजिस्टेंस दिया कि ये जो करंट थी इसके अपोजिट एक करंट बह गई और वो हमारा सर्किट बैलेंस हो गया। गैल्वेनोमीटर ने 0 रीडिंग बता दी, नल रीडिंग बता दी। ठीक है, यही हम प्रैक्टिकल में करते हैं। तो दिस I इज E बाई R प्लस 10 हमारी करंट है। अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम नीचे वाले सर्किट की तरफ ध्यान देंगे। यहां पे नीचे वाले सर्किट को क्या चाहिए, नीचे वाले सर्किट को बैलेंस करने के लिए एक लेंथ, नीचे वाले सर्किट एक लेंथ पे बैलेंस हुआ है, हमको इस लेंथ को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ता था कि इतना पोटेंशियल, इस वाले पोटेंशियल का एक पार्ट आ जाए, एक पोटेंशियल ग्रेडियंट से। यानी सबसे पहले हम इस सर्किट का AB का पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालें। ठीक है, तो लेट्स कैलकुलेट द पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ AB। पोटेंशियल या हम कहते हैं फॉर पोटेंशियल ग्रेडियंट। हम ये कैलकुलेशन पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालने के लिए करेंगे। सबसे पहले तो हम क्या कैलकुलेट करें, पोटेंशियल बिटवीन ए एंड बी, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, VAB नाम दे दिया। I करंट I बह रही है ना, मल्टीप्लाइड बाई रेजिस्टेंस ऑफ AB, क्योंकि पोटेंशियल तभी AB के क्रॉस कितना है वो निकलेगा VAB। तो RAB तो हमको अभी हमने देखा ना कितना है RAB, 10 ओम है। ठीक है, 10 ओम है और I हमने पीछे कैलकुलेट किया तो हम लिख लेते हैं E बाई R प्लस 10 मल्टीप्लाइड बाई RAB। जरा वैल्यू रख के अगर हम देख लें तो हम ये पाते हैं कि ये जो वैल्यू है E हो गया 2 वोल्ट, RAB हो गया 10, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 10 20, तो 20 अपॉन R प्लस 10, ये हो गया हमारा VAB। यहां पे क्वेश्चन में कह रहा था कि ये जो AB है ये पोटेंशियोमीटर वायर है एक 100 सेंटीमीटर का, 100 सेंटीमीटर का है, तो यानी कितने मीटर का है, 1 मीटर का है। यानी पोटेंशियल ग्रेडियंट तो हम लोग वोल्ट पर मीटर में नापते थे, सो दिस विल बी पोटेंशियल ग्रेडियंट K विल बी इक्वल टू VAB अपॉन 1 मीटर, लेकिन 100 सेंटीमीटर है यानी 1 मीटर ना, तभी ना 1 रखेंगे, सो इट विल बी इक्वल टू सेम थिंग 20 बाई R प्लस 10। देखिए ये 1 नहीं, 0 नहीं, 10। और अब इसकी यूनिट हो गई वोल्ट पर मीटर, और ये क्या बन चुका है K, अब ये बन चुका है पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, अब हमको क्या करना है, पोटेंशियल ग्रेडियंट मिल गया, हमको लेंथ पता है 40 सेंटीमीटर पे जाके वो बैलेंस होती है। यानी इस 40 सेंटीमीटर को जब हम पोटेंशियल ग्रेडियंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वो ईएमएफ आएगा जो बैलेंस हुआ है ना, यही तो होगा। चलिए, यानी यही ईएमएफ ये जो नीचे वाली सेल का है ये बैलेंस हुआ है उसमें। ठीक है, सो फ्रॉम बैलेंसिंग कंडीशन क्या हुआ है, ये यहाँ पे बैलेंस हुआ है। नीचे वाली सेल जो है, हम कहते हैं नीचे वाली सेल को हम नाम दे दें E डैश, हम इसको E नाम देके E डैश देते हैं। किससे बैलेंस हुई है, K, मान लीजिए L लेंथ से बैलेंस हुई है, L ही तो 40 है, सो दिस इज 10 मिली वोल्ट, 10 इंटू 10 पावर माइनस 3 वोल्ट ही बैलेंस हुआ है इससे। K अभी हमने देखा कितना आया, 20 बाई R प्लस 10 multiplied by L is 40 centimeter, so we have to convert it into meter, 40 by 100, 40 by 100 meter. So this is what the second equation is regarding second circuit. So we have to calculate R. Now solve it, 10 by 4. So this is 10 multiplied by this is 10 to the power minus 2, और यहां से एक 10 आता है 10 power minus 1, 10 to the power minus 1 डिवाइडेड बाय यहां बचेगा 4, ये डिवाइड इधर किया मैंने, इसको इधर और इसको इधर किया है, ये हो गया 20 बाई R प्लस 10। तो रेसिप्रोकल इसका लिख लेते हैं, इसको हम इरेज कर देते हैं।
ये हो जाएगा 4/10⁻⁻1 और ये हो जाएगा r प्लस 10/20 लिख सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं 20 ये हो जाएगा 80 डिवाइड इंटू 10⁻1 तो 10 हो जाएगा, ऊपर प्लस में चला जाएगा और ये हो जाएगा r प्लस 10। सो r विल बी इक्वल्स टू, ये 800 हो गया, उसमें से 10 घटा दीजिए यानी 790 ohms। ये हो गई r की वैल्यू। सो दिस इज द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस r व्हिच इज यूज्ड हियर। तो आपने देखा कि पहले हमें ऊपर वाली सर्किट में कितना करंट है, क्योंकि नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस था इसका, इसलिए ईएमएफ को ही पोटेंशियल यूज कर लिया, ठीक है। फिर उसके बाद नीचे पोटेंशियल ग्रेडियंट हमने निकाला क्योंकि 40 सेंटीमीटर लेंथ दिया था। फिर हमने उस पोटेंशियल ग्रेडियंट और 40 सेंटीमीटर लेंथ को किसके बराबर किया, नीचे वाली सेल के बराबर। यही हमारा प्रोसीजर होता है प्रैक्टिकल में भी, ठीक है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो लेट्स सी अनदर क्वेश्चन। This question was asked in CBSE 2019. CBSE 2019. Here we have an arrangement of potentiometer. All right. The question is how the balancing length will be affected when R1 is decreased. In first case, R1 is decreased. In second case, R2 is increased. Here we have a instruction that the other factors remaining the same. So other factor is not changing. We have to consider it to be constant. So here AB is a wire. Battery is connected here, and R1 is connected in series with AB. In first case मैं ले रहा हूं। In first case, R1 is connected in series with AB. You can see it here. अगर हम R1 को घटाएं, R1 is decreased, यानी हम रेजिस्टेंस इन सीरीज विद AB हम घटा रहे हैं। यानी इसका मतलब क्या होगा कि जो करंट है हमारे ऊपर वाले सर्किट में वो बढ़ेगा, ठीक है। और जब करंट बढ़ेगा तो हमारा ये पोटेंशियल ग्रेडियंट जो है V = IR यानी AB ये बढ़ेगा। क्योंकि पोटेंशियल बढ़ेगा तो पोटेंशियल ग्रेडियंट भी बढ़ेगा, और पोटेंशियल ग्रेडियंट K बढ़ेगा तब क्या होगा, हियर इफ R1 इज डिक्रीज्ड, R घट गया, रेजिस्टेंस घट गया तो करंट और ज्यादा आए, तो AB के क्रॉस ज्यादा ड्रॉप हुआ तो VAB विल इंक्रीज, पोटेंशियल अक्रॉस AB will increase। अब पोटेंशियल ड्रॉप AB के क्रॉस अगर बढ़ता है सो पोटेंशियल ग्रेडियंट विल इंक्रीज, पोटेंशियल ग्रेडियंट विल इंक्रीज। अब पोटेंशियल ग्रेडियंट जब बढ़ता है तो वहां पे हमारा जो बैलेंसिंग लेंथ है वो किधर जाएगा। अगर आप किसी भी केस में, हम इस वाले के केस में बात करें, मान लीजिए हम कोई एक रिलेशन आपसे पूछते हैं कि ये KL कैसा रहेगा अगर उसमें करंट बह रही हो, तो आप कोई कहते हैं कि कोई B डैश है, इट इज इक्वल टू KL, ऐसा ही कहते हैं ना। पोटेंशियल जो है वो K मल्टीप्लाइड बाई L, बैलेंसिंग लेंथ मल्टीप्लाइड बाई पोटेंशियल ग्रेडियंट, ये होता है। V कांस्टेंट है ना, क्योंकि सारे अदर फैक्टर कांस्टेंट है। तो बैलेंसिंग लेंथ एक पर्टिकुलर केस में किसी भी समय बैलेंसिंग लेंथ जो होती है बैलेंसिंग लेंथ इट इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल ग्रेडियंट। अगर हम पोटेंशियल को कांस्टेंट रखते हैं तो balancing length is inversely proportional to potential gradient. So if K is increased, potential gradient is increased, so balancing length will automatically decrease. So balancing length will
decrease. In first case, balancing length will decrease when R1 is decreased. So it is our answer. Now in next second case. In second case, it is talking about increasing this R2 in the second circuit. जो उसी में नीचे एक अलग सा सेल लगाते हैं जिसका हमें EMF अक्सर निकालना होता है अपने इस प्रैक्टिकल में. So R2 is increased. So for this we need a relation between a balancing length and R2. तो हम उसको पहले निकालेंगे क्योंकि ऊपर वाले केस में तो आसान है, नीचे वाले में हमें बैलेंसिंग लेंथ और R2 के बीच का एक रिलेशन निकालने की जरूरत है. तो हम उसको देखते हैं कैसे निकलता है. सबसे पहली चीज हमको पता है कि जब ओपन सर्किट की बात हो तो क्या होगा. सोल्यूशन सेकेंड वाले केस में EMF E is equals to हम कह सकते हैं कोई बैलेंसिंग लेंथ होती है, यहां पे L1 नाम दे दें या फिर हम कुछ कह दें L1 by L2 होता था KL2, ये E by V के. तो हम E by V कैलकुलेट करने वाले हैं. अभी हम इसको ये केवल इतना लिख के रख लेते हैं. हमने माना कि जब EMF है तब तो E भी है, जब पोटेंशियल जब उसमें करंट बहती है तब उस केस में हमने मान लीजिए कि बैलेंसिंग लेंथ कह दिया L है. तो पोटेंशियल ग्रेडियंट मल्टीप्लाइड बाई L लिख सकते हैं, ऊपर वाले में भी लिख सकते हैं, लेकिन अभी हम केवल इस केस को लेके चल रहे हैं कि जब पोटेंशियल यहाँ पे V है तब यहाँ पे बैलेंसिंग लेंथ जिस पे जो भी जाके रुकेगा कि जिसके लिए जिस V के लिए यानी इस वाले जिस पोटेंशियल के लिए जो बैलेंसिंग लेंथ मिले दैट इज L. सो E by KL हमने अभी के लिए इसको लिख लिया. अब इसके बाद हम अगर इसको सॉल्व करें, हमको पता है, हमने रिलेशन देखा है कि अगर इस वाली सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r हो और बाहर का जो रेजिस्टेंस है, जो इसका एक्सटर्नल एक रेजिस्टेंस जो है दैट इज कैपिटल R, तो हम ये पाते हैं कि अगर मान लीजिए इसका खुद का इंटरनल रेजिस्टेंस यहां मैं छोटा सा बना दे रहा हूं, ये एक्चुअली में बना नहीं है, R है. तो इस केस में जब इसमें से करंट बहना शुरू होती है, I करंट बहती है, तो हम लिख सकते हैं ये वाला एक रिलेशन अलग रखिएगा, केवल इस वाले के लिए हम क्या लिख सकते हैं E माइनस V इज इक्वल टू I R लिख सकते हैं ना, ये हमने कई बार यूज किया है. सो E माइनस V की जगह हम क्या लिख सकते हैं I R 2 इज इक्वल टू I R ये लिख सकते हैं. ये हम ऐसा कर सकते हैं, लेकिन हमने क्या किया एक स्टेप इसमें रुक लिया, V कॉमन लिया, E by V बनाया, इसको -1 किया, ये जो V कॉमन लिया था इसको इधर डिवाइड कर दिया I R by V. ऑलराइट, और हमने यहाँ पे देखिए V कॉमन लिया तो यहाँ E by V भी तो बन गया. ये देखिए यहाँ पे I R by V, ठीक है, I R और इस V की जगह I R 2 भी कर सकते हैं एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से. हम हमेशा इसके नीचे में ऐसा कर सकते हैं क्योंकि ये केवीएल लगा के हम देख रहे हैं, यही ये इक्वेशन बनती है, ये वाली जो ये EMF ऑफ सेल के लिए इक्वेशन होती है. तो इस एक्सप्रेशन को ही अब हम यूज करने वाले हैं. ठीक है, देखिए यहां पे इसको R by R2 लिख सकते हैं, तो E by V की जगह क्या लिखते हैं KL. मान लीजिए V पोटेंशियल पे बैलेंसिंग लेंथ L थी, तो E by KL, जैसे हमने E by V की जगह E by KL यूज किया है, इट इज इक्वल्स टू -1 it is equals to R by R2. So take this side, this will be E by KL, it is equals to 1 plus R by R2. Alright, ऐसा बन गया. अब इसको रेसिप्रोकल ले लिया तो K by L, KL by E is equals to 1 upon 1 plus R by R2, ये लिख सकते हैं. रेसिप्रोकल ले लिया. अब यहां पे L रहने दो, बाकी सारी चीजों को एक साइड कर दो. तो L is equals to E by K 1 plus R by R2. ये एक्सप्रेशन हमारा बैलेंसिंग लेंथ और L के बीच में हमने एक एक्सप्रेशन बना लिया. अब देखिए हमने ये किया कैसे है, मैं एक एक करके फिर से बता देता हूं.
सबसे पहले हमने ये माना कि जब नीचे वाली सेल में से करंट निकलती है तो I करंट निकलती है और I करंट में बैलेंसिंग लेंथ हमको मिलती है L, नीचे वाली सेल से जब करंट निकल रही है, यानी क्लोज सर्किट के केस में। अब उस पर्टिकुलर टाइम पे चूंकि KL है, उसका पोटेंशियल, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, जब इस सेल से करंट निकलने लगी, और E कब का केस है, जब उसमें से करंट नहीं निकली थी, तब उसका केवल इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ पे R है ना, तो ये यहाँ पे हम यूज करेंगे E/KL हमने लिख लिया, अभी हम इसको यहीं पे रख रहे हैं। अब ये वाला एक्सप्रेशन अलग है, E माइनस V इक्वल्स टू IR हम यहाँ लगा सकते हैं कि मान लीजिए इसमें करंट I अगर निकलती है तो E माइनस V इक्वल्स टू IR, ठीक है। तो E इक्वल्स टू V प्लस IR, हम ऐसा कर सकते हैं, हमने यहाँ V कॉमन लिया, E/V माइनस 1 किया, IR/V1 किया, V की जगह IR2, कितना टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस यहां से अप्लाई होगा, IR2, केवल एक्सटर्नल वाला रेजिस्टेंस यूज होगा, IR2। अब यहाँ पे E/KL माइनस 1 इज इक्वल टू R/R2, क्योंकि करंट तो सेम है R से भी और कैपिटल R2 से भी, तो यहां से हमने कुछ सॉल्व किया इसको, और L और इसके बीच में रिलेशन आ गया। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, R2 और L कैसे रिलेटेड है। जब R2 घटता है, नहीं R2 बढ़ रहा है, when R2 is increased, तो R2 बढ़ रहा है तो R/R2 जो है वो डिक्रीज करेगा, यानी ओवरऑल डिनोमिनेटर डिक्रीज करेगा। जब R2 को आप बढ़ाएंगे तो बड़ा वाला जो बाहर डिनोमिनेटर दिख रहा है ये डिक्रीज करेगा, और जब ये डिक्रीज करेगा तो ओवरऑल क्वांटिटी इंक्रीज करेगी, यानी L विल इंक्रीज। तो क्या होगा, R2 इंक्रीज करने पे बैलेंसिंग लेंथ विल इंक्रीज, हम कह सकते हैं ऐसा। तो ये हो गया हमारा आज का इस चैप्टर से सारे क्वेश्चंस। हम नेक्स्ट क्लास में कुछ और क्वेश्चंस लेके आएंगे। थैंक यू।